Hello everyone, my name is Manya Gupta and I'm here to welcome you all on behalf of the club Hackslash and present you all Study Jams 01. So, Study Jams. Study Jams are organized by our club Hackslash every single year, and this is for the first year students specifically. Now, as a first year student, I think you must attend these sessions because all these sessions will be posted on the YouTube channel of Hackslash, and this will save you a lot of time and give you a very precise amount of knowledge. And so, pick the topics around your interest and start attending these sessions. So, as a first year student, I'm quite sure that Git and GitHub, you must have heard these terms, but uh, most of you are still quite confused about what is exactly Git and what is exactly GitHub. So I'm here to clear this doubt and give you a very nice introduction to Git and GitHub and even touch some in-depth topics. So let's begin. So the first thing we are going to talk about is what is Git and what is GitHub. What are their properties and all. Actually क्या करते हैं, क्या difference है, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं. So what is Git? Git is simply a software. We have many softwares in our laptop. Okay, so Git is a software that we use to record some changes. Now what type of changes, कैसे changes के बारे में हम actually बात कर रहे हैं. So suppose हमारे पास एक folder है जिसके अंदर हमने कोई और डायरेक्टरीज बना के रखी हैं, हम उसमें कुछ काम कर रहे हैं, हमने कोई कोड लिख के रखा है. सो गिट क्या करता है, गिट ट्रैक करता है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करते जा रहे हैं उस फाइल में. गिट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ दैट फाइल, ट्रैक रखता है. ओके, इट्स इक्विवेलेंट टू गेम्स में जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं. ओके, सो हम अगर एक चेक पॉइंट से दूसरे चेक पॉइंट तक हम पीछे कोई चेक पॉइंट पे जाना चाहे तो गिट हमें उसमें हेल्प करता है. ओके, सो यही हमने लिखा है थर्ड पॉइंट में कि फोर्थ पॉइंट में कि रिवर्ट बैक टू द ओल्डर वर्जन्स व्हेन एंड इफ नीडेड. ओके, सो गिट क्यों यूज़ करते हैं हम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि कोलैबोरेशन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं कि अदर प्रोजेक्ट्स on your projects more easily. So suppose you are making a project with a friend. Okay, so you have sent him or her your code via WhatsApp that this is my code. This is not the optimal way to send your code. You need to track ki what changes did he make, what changes, when did he make those changes, what exact code lines he changed. So these are things which are kept in record by Git. Git is a software. Okay, so this is all about Git. And now what is GitHub? Now we have many platforms that we use. Many platforms on Chrome. We use a lot of platforms. Okay, so GitHub is one of those platforms which hosts Git. GitHub is one of the platforms that hosts Git. Now Git is a software, and GitHub it is a platform. It is an online platform which host Git. मतलब वो Git को use करता है, उसके ऊपर वो और भी additional चीज़ें ऐड करता है, tools ऐड करता है, so that हम उसे और collaborative बना सकें, हम उसे और अच्छे से use कर सकें और चीज़. अब GitHub अभी चल रहा है. अब और भी है हमारे पास, जैसे गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया, हम और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिट होस्ट करते हैं. उसमें हम गिट के रिपोजिटरीज रख सकते हैं. हम रिपोजिटरी क्या होती है, जैसे जो फोल्डर हमारे लैपटॉप में बन रही है, अगर वही हम गिटहब में डालेंगे वो रिपोजिटरीज कहलाएंगी. ओके, दैट इज व्हाट रिपोजिटरी इज. ओके, अब ये एक्चुअली क्या करता है, जो हमारे डिवाइस में जो लोकल लोकेशन होती है, सपोज स्लैश डेस्कटॉप स्लैश ABC. Now this is the default, this is the local लोकेशन. नाउ अगर आपको ये लोकेशन किसी और को भेजनी है, आप ऐसे थोड़ी भेजोगे कि आप इसको डालो अपने लैपटॉप पे ये रन करेगी. नो,
ये जो होती है गिटहब क्या करता है, ये लोकेशन से आप अगर कोई कोड भेज रहे हो उधर पे, कुछ कनेक्शंस करने पड़ते हैं आपको वहाँ पे, वो हम आगे सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। अब आप इसको रिमोट लोकेशन, गिटहब क्या करता है, इसको एक रिमोट लोकेशन प्रोवाइड करता है। इट जनरेट्स अ रिमोट लोकेशन in which you can store your Git workspaces, that is your code. Okay, now since ये आपका एक रिमोट लोकेशन है, आप कहीं से भी इसे ट्रैक कर सकते हो। यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। ओके, इट कंटेन्स many collaborative tools like issues, pull requests. These are tools which you will learn. The more you use it, the more you can understand it. It's nothing that I can make you understand. The more you keep using it, you'll just get it, okay, in time. Okay, though we will discuss about pull requests and all in some time in the next few slides. Now, one important thing is that this is cloud based. It will not use any of your storage of your device. Okay, and Git, the most important thing was version control system. Now, VCS, you will use this term a lot whenever you are going to explain what is Git. What is version control system? It's just telling you that it keeps track of um, the versions of your code. Okay, so it controls those versions. You can work on those versions. Okay, you can go back to some other version. Okay, original version you can go back to wherever you like. Okay, next, moving on to what is the difference between Git and GitHub. Now, this table tells almost all the differences. Um, First is that Git is a distributed version control system. Git is a software. Git is a version control system. Okay, we have many softwares, and Git is one of them. What does Git do? It manages and tracks codes changes locally. Now, locally means in your VS Code. What is VS Code? VS Code is a code editor. Okay, so it manages and tracks code changes locally. What GitHub does, GitHub is a cloud based platform for Git repositories. Now the folders in your laptop, this will when we push our code from this folders of our laptop to some uh, platform, that is Git is a web based or cloud based platform. Okay, um, ये उसको क्या देगा, एक रिमोट लोकेशन देगा. सो इट होस्ट्स द रिपोजिटरीज ऑनलाइन. वो हम ऑनलाइन उसे होस्ट कर रहे हैं, सेम रिपोजिटरी सेम कोड हम उसे ऑनलाइन होस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब वहाँ से जो हमें लिंक मिलेगा, दैट इज़ द रिमोट लोकेशन, वो हम कहीं पे भी भेज सकते हैं. And that is how we will share our code. We won't be sharing our code over some file or txt file and send it to someone. No. So we are going to share the exact code, the exact file structure through GitHub's remote location. Okay, it is a cloud-based platform for Git repositories. You can access this via a browser. Okay, so next is installation. Git is a software, so it needs to be installed on your local machine. GitHub, there's no need to installation because it is a platform. So this platform can be accessed via web browsers like Chrome and all. Okay, functionalities, it handles version control and branching. Okay, version control, I've talked about what is version control. It's just about the checkpoints. Okay, now branching you will learn in the next few slides. Now GitHub क्या करता है? GitHub provides tools like pull request, issue tracking and CI/CD. Okay, the more you'll use GitHub in the upcoming months, the more you'll know about it. Collaborations works offline, sharing is manual. So this is in your VS Code. So क्या करना है, अब वो ऑफलाइन काम कर सकते हो उस पर, एंड शेयरिंग आपको मैनुअली शेयर करना पड़ेगा कि ये फाइल हमको शेयर करनी है, ये कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ से वहाँ. ओके, अब ये क्या करते हैं, इनेबल्स रिमोट लोकेशन, रिमोट कोलैबोरेशन विद टीम. ओके, सो वहाँ से किसी ने कुछ कोड भेजा, मैंने यहाँ से कुछ कोड भेजा, वो एक ही लोकेशन पे जा रही है, सारे चेंजेस एक ही जगह पे हो रही है. तो यहाँ पे वो कोलैबोरेशन को एनहांस कर रहा है, वो कोलैबोरेशन ईजियर बना रहा है हमारे लिए. ऑथेंटिकेशन, अब आप VS कोड पे जाते हो तो ऑथेंटिकेशन के लिए थोड़ी आपको पासवर्ड वगैरह बचता है, नो. बट इन गिटहब वो एक प्लेटफॉर्म है वेब बेस्ड, तो वो आपसे ज़रूर आपका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या कोड जनरेट होता है आपके जीमेल पे जाता है, वो आपसे पूछेगा, बिकॉज इट रियली वांट्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स कोड. ओके, डेटा स्टोरेज, सिंस गिट सॉफ्टवेयर अगेन वो लोकली काम करता है, तो उसका लोकल सिस्टम आपके लैपटॉप का डेटा जो भी आता है उस पर आपका स्टोर होता है स्टोरेज में.
Okay, next GitHub. GitHub again, it's a cloud-based storage. Now, why Git and GitHub? मतलब क्यों करना है, मतलब why do you actually need it? अब देखो, there are going to be many sessions here. Blockchain हो गया, web हो गया, web dev हो गया, and AI ML, the many interesting topic. But what is the common hub? All of these teams use Git and GitHub. मतलब they all use Git and GitHub actually. Because when you start using Git and GitHub, that is it tells कि आप प्रोफेशनलिज्म आप जान चुके हो. ओके, सो गिट एंड गिटहब आपको कभी ना कभी somehow you have to learn it, बिकॉज आप कोड किसी को ऐसे कॉपी पेस्ट करके या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं भेज सकते. आपको एक प्रॉपर गिटहब रिपोजिटरी यूज़ करनी पड़ेगी, अपने अपने कोड डालने पड़ेंगे. आपको कंपनीज में अगर शेयर करना है, आप अपना गिटहब लिंक शेयर करिएगा, वहाँ से वो देखेंगे कि आपने क्या क्या काम किया. सो सबसे पहला काम किया, टीम प्रोजेक्ट करें. आपकी 10 की टीम है या 5 की टीम है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तू मुझे कोड भेज, मैं यहाँ पे अपने डिवाइस पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा वो कोड. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो वहाँ से उसी लिंक पे कोड अपना पुश करेगा या भेजेगा, और मैं यहाँ से उसे अप्रूव करूँगी. दैट इज़ हाउ गिट एंड गिटहब एक्चुअली वर्क्स. नेक्स्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट्स. आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कैसे शेयर करने वाले हैं? आप शेयर कैसे करोगे? लिंक वायर शेयर करो, तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पुश कर सकते हो. आप डाल सकते हो गिटहब पे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स, और वही आप सीधा भेज सकते हो, एंड द पर्सन विल नो कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, एंड these are the features of your project. Next is open source contribution. Now, open source contribution is very important, but not many of the students do open source contribution. What is open source contribution? Open source contribution is nothing, just some person or some company or anyone will post a code base, okay, a very complex code base, and when you contribute or when you change any of the code there, that is you are contributing to the betterment of that code base कि वो और optimal हो. Okay, so that is how ओपन सोर्स वर्क. अब कोई कंपनी अगर आपको अपने कोड बेस में चेंजेस करने दे रही है, तो वो गिटहब पे ही देगी, मतलब वो इट विल यूज दिस, वो आपको, दैट इज द ओनली वे. ओके, नेक्स्ट इज जॉब एप्लीकेशन. अगर आपको बताना है कि आपने कितने आज तक के कोड लिखे हैं, या फिर कोड लिखे हैं, या फिर कुछ भी किया, तो आप सिंपली क्या करते हैं, अपना गिट हब का जो लिंक होता है आपका आईडी का, आप वो भेजते हो, पर्सन कैन गो थ्रू. नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट वाया गिटहब एक्शन. अब आपका कोड बन गया है, आपने सब किया, आपको डिप्लॉय करना है. डिप्लॉय मतलब वो, मतलब डिप्लॉय करना है जो भी, वो आप कैसे करोगे? गिटहब एक्शंस एक टूल होता है, गिटहब में ही होता है वो, तो आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो. ओके, so next we're going to talk about is some basic terminologies about Git and GitHub, mainly Git, that you need to know before you dive into the concept of Git. Means these terminologies, this part of our PPT, it's going to cover most of the Git one needs to know. Okay, so the focus should be totally here, because it's really really important, and it's a little overwhelming in the beginning. बट आप जैसे जैसे आप खुद से काम करते जाओगे इन टॉप, मतलब खुद का प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे, खुद छोटे छोटे कुछ भी करते जाओगे, you are going to love it, you are going to understand it more and more and more, and these will be just a cup of tea for you guys. Okay, so let's start with what is a repository. Now, repo. What is a repo? So, just like a folder in our computer, a repository is a collection of files and directories. It stores all of your code in one place and manages it. You can share it upload with your code with a link. Okay, there's a typo here. Okay, you can share your code with a link. Now, अब what have I taught till now कि git क्या, let's take a quick recap that git क्या करता है. इट्स अ सॉफ्टवेयर जो आपके लोकल डिवाइस पे आपको ट्रैक करके देता है कि आप क्या क्या चेंजेस कब का क्या क्या कहाँ कर रहे हो. गिटहब क्या करता है? गिटहब क्या करता है, वो लोकल डिवाइस के लोकल एड्रेस को वो एक रिमोट एड्रेस देता है, ठीक, जिससे आप शेयर लिंक जनरेट होता है, जिससे आप शेयर कर सकते हो यहाँ वहाँ. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब जब कोई फोल्डर, सपोज मैंने कोई फोल्डर बनाया हैक स्लैश नाम से, वो फोल्डर अगर मैं
गिट पे पुश करूँगी, यहाँ पे गिटहब, सॉरी, मैं अगर गिटहब पे डालूंगी उसे तो वो फोल्डर क्या बन जाएगा, वो फोल्डर बन जाएगा अम, एक रेपॉजिटरी। हम उसी फोल्डर को एक रेपॉजिटरी बोलेंगे, जो हमारा आउटर मोस्ट फोल्डर रहेगा, जो हम उस लिंक पे क्लिक करते ही पाएंगे, वो हमारा आउटर मोस्ट folder will be called a repository. It's a fancy name. Okay, repository. Okay, so repository, or it's also called a repo. Okay, so this was all about it. Now आप एक repository कैसे बनाओगे? देखो, जब आप सपोज, देखो, गिट इनिशियली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो सारे को ट्रैक करता है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि कोई फाइल गिट ट्रैक करे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैंने सपोज VS कोड पे कोई फाइल बनाया एंड मैंने उसमें लिख दिया कि गिट इनिट। ओके, मैंने टर्मिनल खोला, टर्मिनल में मैंने लिख दिया गिट इनिट। नाउ अब क्या होगा कि गिट को मैं इस कमांड से ये बता रही हूँ कि यू हैव टू ट्रैक दीज फाइल्स डाउन, यू हैव टू ट्रैक द एंटायर फोल्डर। ओके, जैसे ही गिट उसे ट्रैक करेगा, वी कैन से कि अगर मैं इसको पुश करूंगी तो ये हमारा repository कहलाएगा। फाइन, git init command will create a new folder on your system and initialize it as a git repo. Okay, this adds .git folder to your project. Okay, ये आप करोगे, you'll know it. So the next is how to clone an existing repository. Suppose you have a repository of a company that you have to clone in your own laptop, and you have to get a copy of that in your own laptop, and आपको उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपको अपना फाइनल जो कोड है वो आपको कंपनी, मतलब उस गिटहब के लिंक पे वापस भेजना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि क्लोन करना होता है आपको रेपॉजिटरी। सो क्लोन करना है तो आप टर्मिनल खोलोगे, ओके, या CMD खोलोगे, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आप गए, आपने जो डायरेक्टरी जहाँ पे आपको वो चाहिए आपका फाइल, आपने वो खोला, एंड उसके बाद गिट क्लोन, your command will be git clone and the repository URL, जो repository, जो आपको remote URL, आपको remote location का जो URL रहेगा वो आप यहाँ पे डालोगे, तो वो जो भी वहाँ पे कोड रहेगा गिटहब पे, वो आपके लोकल डिवाइस पे आ जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज अ रेपॉजिटरी, हम कैसे एक रेपॉजिटरी देंगे कि वो गिट ट्रैक कर सके, और अगर कैसे हम एग्जिस्टिंग रेपॉजिटरी को क्लोन करेंगे अपने लैपटॉप पे ना। अब जो रिपॉजिटरी हमारे पास है, सपोज उसमें हमने कुछ 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 चेंजेस किए हैं, अब उसे ट्रैक, मतलब वी हैव टू सी द स्टेटस। ओके, द स्टेटस ऑफ द रिपॉजिटरी, कि वो किस स्टेट में है। ओके, सो वो हम कैसे करेंगे, गेट स्टेटस इज द कमांड। मैं आपको ये सब चला के दिखाऊंगी कुछ देर में। नाउ git config, now git config is कि there are some settings git में, ठीक है। You have your username there, you have given your email over there, and there are other settings also। आप जो पूरे list को देख सकते हो with this command git config hyphen list। okay, you can see all the settings over there. But if you have to reset, or you have to change setup, not actually reset, but when you have to set up, so you set up using these commands, that is get config hyphen global username dot email, your email at the rate gmail.com, and all this. Okay, So, hello everyone. I am Aditya Pratap Singh from Hackslash. I'm also going to take your Git and GitHub session along with Manya. So, today we are going to learn about Git installation and VS Code installation, and also Git and GitHub in general. So, we are going to start with Git installation. So, in order to install Git, we will go to the site gitscm.com. If not, you can just go here and search Git install. So if you search it, the first link will be downloads. If you click on that, it will take you to the downloads page. Here you can see all those different systems. If you have a Mac OS or a Windows or a Linux, you can choose whatever particular system that you have. And let's say I have Windows, so I will click on that. Here it will show me this all these different settings. So 32-bit, 64-bit, whatever architecture you have in your laptop or system. Most of today's laptops are like 64-bit, so you can just install 64-bit systems. And once it's downloaded, you can see it in your downloads folder right here. You can just click on it.
and provide it all the permissions and just click OK and accept and all these things, just basic setup, and it will be installed completely. In order to check that if it's completely installed or not, you can just go and do some, write it. This, you can write this command. It will tell you that yes, it is installed. So if you're not sure if it's installed correctly or not, you can just do that, and it will let you know that if you have installed it correctly. Once it's done, now it's time to create your account on GitHub. In order to create your account, you will just visit GitHub. So let's say GitHub. So yeah, I have opened the GitHub official website. So here you can see sign in and sign up. If you already have an account, you can just sign in. If you don't, then just click on sign up. Fill your email, password, and whatever unique username you want to. Uh, Keep in mind that your username will be seen by the companies. So do not write something uh, that is not professional, because it may harm your professional career as well. So choose your username wisely. And once you have chosen it, this is just a basic sign up. So just like all the websites you have done in the past, you can just sign up. Once you have signed up, you can just go ahead and sign in with your email and password. Once you have done that, you will get this page. So this is your main page. So as you can see, this is my GitHub page, and I have some repositories already. So once we have logged in, the next step is to set your identity. So what is setting identity? So you have installed Git and you have made your GitHub account, but the Git in your system does not know where to send all your codes, where to send all your folders, all your repositories. So what you have to tell is, you have to tell the Git in your system that, see, this is my account username and this is my email, and this is where you have to send all those codes. So what you have to do is, you have to just open cmd like this, and you can see the command here, git config global, git config global user dot name, and my username is Aditya Singh. You can just enter, and it will take, and also you can use your git global user dot email and your email address. As I have already signed in and done all those things, so I'm not going to do it. So once it's done, your Git will be connected to your GitHub account. Then we will move on to VS Code installation. So in order to install VS Code, you can just click on Google and just search VS Code download. The first link is official download Visual Studio Code for Mac, Linux, and Windows. You just go there, and here you will find Windows, Mac, and Linux systems. So whatever you are using, you just click on that and download it. Just, it will also be a launcher. You just click on it and then accept default whatever it is, and it will be installed automatically. Once it's done, it will look like this. Okay, once you have installed it and you open, this is what the screen you will see. So there are different options available. You can also see from here. So what I'm going to do is, I'm going to create a new folder, and this is where I'm going to put all my codes. So let's say I'm going here. I have already created one folder, git session. Okay, let's just open it up. Once it's open, it will be like this. I have this file. Let's do it. So you have this git session folder open, and now you can just click on this plus icon to add a new file. So let's say I made hello.java. So keep in mind, whatever class you are doing, whatever language you are using, so extension .java, or if you are using C++, then .cpp, or if you are doing in C, then .c, or if you are doing in Python, then .py. Make sure you have that. And here also in extensions, you have to download some extensions so that VS Code can understand what you are actually writing in that language. So for that, debugger for Java, project manager, extension pack, all these like 5 different extensions for Microsoft you can install. You will also need JVM, uh, which you will learn to install later.
So now let me just create a simple. Okay. So here you have Git and GitHub session, basically just a basic file. Once you have done it, now I'm going to create a new repository in the GitHub. This is where all my code for a particular project is going to be shared online. So for that, I'm going to click create and new repository. So here it will take me to this page. Here I have to enter the repository name. So let's say I'm saying GitHub session. Okay. So it will create that repository. You can also add descriptions like a way to learn GitHub or whatever you want. Now, this is an important part, public or private. So this will set your repository if it's shown publicly or not. So let's say if you're making an open source project or if you want your code to be seen by any person online, then you can choose public. But if it's confidential, if you need that code particularly to yourself, or if it's a copyrighted code or something like that, you need to select private. So this way your repository will be private and only you can see it. No one else on the internet can. So make sure to choose whatever kind of project you are making, if it's public or not. Here you have a add a readme file. So here's the add readme file. So with this, you can add some readme files. These are just basic text that you add. So if someone, like if you have a public repository and if you want that anyone who comes to a repository can see what it does and how to install it in their device or how to use that particular project for themselves, so you can add instructions here. And these are git ignore templates. These are just keep it default, and then we will click on create repository. Here it will have created the repository. So this I think you have done here. Okay, git installation may when you configure, then you have to set your own identity over there so that there is your name and your email address attached to that. Okay, so that you can connect your GitHub through it. Okay, so coming back to this, so let me just quickly show you these commands once. So firstly, what is a repo and all? Um, this is just a minute. So this is your VS Code opened on the left side. Now I've created a folder called GitHub session, and there's this file first.txt. Now if I enter here, this is GitHub session. Now this I've done this. Now when you open the terminal over here, okay, it is in the GitHub session directory. Now if you write git init, now this is telling you, it gave you a message out here that it has initialized an empty git repository in this location. Okay, this location it has given, it has initialized an empty git repository. Now when I told you that this dot git folder is added in your project, okay, now this git dot git is added to your project, but it is hidden over here. Now, as I told you, if I run this git init command again, it will show me a message that it has reinitialized the existing git repository in this specific location. Now, so you can see that this is written now in a green font color, and then there's a U appearing over here. It says that Git is tracking this file now. If you check the source control panel, now you'll see that all these it's tracking, and it has shown me that these much changes, this green portion changes has been made, this has been deleted. Okay, I can revert this change. Look, it's giving untracked, but I can revert this change. Okay, now again if I write hello world, suppose if I write hello world, so this is how
it's going to show me that this is the, it's showing me untracked because I have not commit everything. Okay, so just a minute. So this is how it works in your VS Code. Now we are going, the next thing was we talked about what is a repository, how to create one, and now clone an existing repository. For your reference, I've created a repository. Let me just show you quickly. Look, I have created a repository just now. This is Git GitHub session is the name of this repository. Okay, this is the name of this repository, and since it's an empty repository, it looks like this. Okay, these are the commands they're telling me to do so that I initialize it. Now, whatever. This is the HTTPS link and there is one SSH link. Okay, now we are going to copy this HTTPS link over here and we are going to use this link to clone this repository in our local device. Like whatever, like if this is an empty repository, but if there was some code over here, so whatever code was there, I want to clone it in my own laptop, in my own local device. I can do with the help of this. Now I'm going to open my command prompt for this, or you can also do it in your VS Code also in the terminal, but I'll do it in my command prompt. So this is my command prompt. I'm quickly going to change the directory to desktop. Okay. Now here I'm going to enter the command git clone. This is the command you're going to use when you're going to clone a repository in your local device. Now, where is this repository going to be created? It will be created in this location. Okay, in this location. Now, here I'm going to enter the address of my remote. This is ये क्या है? This is nothing but the remote address. Okay, I'm going to enter this. Now it is saying cloning into GitHub session. Now it's a warning that you appear to have cloned an empty repository. Though it's an empty repository, it will be cloned in your laptops. Now let me just show you that where in my desktop it has been created and what is inside of this folder. Okay. So as you can see that I have opened this folder, GitHub sessions. Exactly name has been copied over here. So it contains a .git file. So as I told you in the PPT also that it contains a .git file. Now how am I able to see this? This is because I have changed my view to show hidden items. Now if I disable this, it will show me that there's an empty folder. It means it was an empty repository. So this is what you're going to see when you clone a repository. Suppose in that repository there were more folders, there were more files, all of those will be shown here in folder structure. Okay. So we have discussed about repository and how to create a repository and how to clone an existing repository. Okay. Next, in the slides, we have how to check the status of the repository. So for this specific command, we will come back to it later. Okay, we have few more important commands after which you will understand that how you are going to check the status of your repository and what is actually the status of the repository. Next, we are coming to a very small yet important command, that is git hyphen version. So this is to check the git version you are having. So you can do this in your command prompt to check the version. Let me just show you. So this is my command prompt, and if I enter git hyphen version, and so this shows me that this is the version of git I am having in my system. Okay, so it's important, you should know. Next, we are having this git config command. Now, git config command is a useful command. So, look, जब आप कोई भी commit कर रहे हो, आप कोई भी changes कर रहे हो अपने files में, either locally अगर आप अपने files में कोई भी changes कर रहे हो, तो git उन files को track करता है, right? ये मैंने पहले बता दिया. But now what I want to say is जब आप उस फाइल को ट्रैक कर रहे हो, आप उस फाइल को चेंजेस कर रहे हो, तो गिट ये भी रिकॉर्ड रखता है कि आप कौन है, मीन्स आपका नाम, आपका ईमेल, आपने कब किया है.
So to verify and authenticate वो आपका ये सब डिटेल्स भी रखता है, so that when you have to push to GitHub, मतलब पुश इन द सेंस व्हेन आप अपने लोकल रिपोजिटरी या लोकल फोल्डर से वीएस कोड से जब आप गिटहब पे अपना कोड डालना चाहते हो जो आपको एक रिमोट लोकेशन एक रिमोट एड्रेस प्रोवाइड करेगी, वो आप जब करते हो तो आपका जो गिट है आपके लोकल डिवाइसेस में वो आपका इट कीप्स द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, एंड जब वो पुश हो रहा होता है, जब वो कोड यहाँ से वहां जा रहा होता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी उसके साथ जाती है ना। गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो है आप अपने यू कैन चेंज योर यूजर नेम ईमेल एंड अदर सेटिंग्स टू गेट कॉन्फ्लिक्ट फाइल स्टोर ऑल द सेटिंग्स दैट यू हैव चेंज, ओके। तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड के लिए ये कमांड होता है, ये कमांड्स के बारे में मैं बताऊंगी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट इन द git installation portion, okay। So what I will tell you is what is this global thing. Now, Git जो होता है वो दो तरह से टू लेवल्स, ओके, वो आपका Git कॉन्फ़िग करता है. Now you have your email and password on a global level, मीन्स आपके पास जो भी repositories है उसके लिए एक email and password जनरेट होता है, मतलब वो जनरेट नहीं कि आप डालते हो and that is stored in the history of Git. Now it also has a repository level. Okay, Git config also has a repository level. It means what? It means that each repository is going to have a separate setting system. It will have its own separate setting system in which you can specify another settings of your choice. Okay, so as a beginner, you do not have to worry about the um, you just need to know about the global, not the repository level, right? So this is something you have done already. And to check config system command, this is a simple command. You can run it in your laptop and you'll see a list of commands. That is the settings that it has stored about you. Okay. Next, we are coming to this very important and the most important slides. Now, I want to say that you have reached the most important slide right now. Okay, so GitHub, चलो किसी को अगर नहीं भी आता है उनको ये तीन चीज करते होते हैं एंड दे कैन डू एटलीस्ट द सिंपलेस्ट थिंग्स. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ गिट एंड गिटहब. यहाँ से आपका एक्चुअली गिट एंड गिटहब यूज कैसे करना है वो स्टार्ट होता है. क्यों करना है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब कैसे करना है, now that is how we are going to start. Okay, so there are three very important commands, that is the add command, then the commit command, and then the push command. Now add, commit and push, these are the three important commands one should remember. Okay, remember in this sequence. Now अब मैं क्यों बोल रही हूँ इस सीक्वेंस में ही याद करना है आप लोग को. दैट इज बिकॉज गेट जो होता है एक पर्टिकुलर, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है, किट एक पर्टिकुलर फ्लो में काम करता है. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इन दिस टोटल डायग्राम जो नीचे से ऊपर शोकेस हो रहा है. तो वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है. आपने अपना वीएस कोड खोला, अब आप वीएस कोड में ब्लैंक थोड़ी बैठे हो. आपने अपने सपोज डेस्कटॉप में कोई एक फोल्डर बनाया होगा अपने नाम से, ठीक है, आप उस फोल्डर को वीएस कोड में खोल रहे हो, राइट. उसके अंदर आपने एक और फोल्डर बनाया, सपोज उसके अंदर आपने एक फाइल बनाया, टीएक्सटी फाइल बनाया. तो आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, वो आपके नाम का फाइल और उसके अंदर जो फाइल है वो, दैट इज योर वर्किंग डायरेक्टरी. सपोज बाहर वाला इज आउटर, उसका नाम आउटर है, एंड जो अंदर वाला फाइल है फोल्डर है उसका नाम है inner. So what is the working directory? Something something something. Your names hyphen slash your name slash desktop slash outer slash inner. That is your working directory. आप वहाँ पे उस डायरेक्टरी में अपने लोकल डिवाइस में आप काम कर रहे हो. That is your working directory. Okay. अब working directory के लिए commands भी होते हैं. There are commands for the working directory. अब क्या commands होते हैं working directory? अगर आपके पास Linux system है तो आप एक simple command, that is if I remember right, pwd, okay, that is a present working directory. Okay, वो आप रन कर सकते हो एंड आपको वो आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा. जब आप विंडोज में टर्मिनल वगैरह पे देते हो वो एक्चुअली पहले आपको वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है,
एंड फिर आप कोई कमांड कर दो। तो cd इज अ कमांड जो मतलब लेट मी जस्ट शो यू just a sec. Suppose this is my command prompt I showed you earlier. Suppose I'm doing I've changed the directory cd desktop. Now cd is change directory, means I'm changing my directory to go further deep down into the desktop part. Okay. Now if I have a folder over here, GitHub, I don't remember the name, just a sec. Yes, suppose GitHub session is the name, right? GitHub session. Now it has, I've changed the directory to this. So this is my current working directory. And ये कहाँ से originate हो रहा है? इतने लंबे address से originate हो रहा है. पहले users then मान्य गुप्ता जैसा कुछ folder है, उसमें folder desktop का folder, that is the structure of the laptop. ठीक है. अब इसमें अगर मैं cd करूँ सिर्फ, ये जो आ रहा है ये आपका present working directory है. अब अगर आप pwd करते हो, this won't work here. Okay, it's not recognized. ठीक है, बट आपका लिनक्स सिस्टम्स में ये काम करेगा. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू इस पे काम करना. तो ये जो है वर्किंग डायरेक्टरी, ये आपने समझ लिया कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है. अब हम बात करेंगे स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी एंड रिमोट. इट साउंड्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग कि ये जार्गन्स क्या है. अभी 4 बिग जार्गन्स जिसमें से आप एक समझ चुके हो. ठीक है, एंड इवन आपको लोकल रिपोजिटरी क्या होता है ये भी पता है. सो आई जस्ट let's skip let's head towards the git add wala command. Okay, so suppose you have opened some directory in your VS Code in your local device. Now आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैंने कुछ कोड में चेंजेस किया. आई हैव चेंज सम ऑफ माय कोड. ओके, अब जैसे ही मैं कोड में चेंजेस की ना, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली वर्किंग डायरेक्टरी में आपको गेट इनिट करना होता है, राइट. वी हैव टॉक्ड अबाउट गेट इनिट ओवर समवेयर. या आप रिपोजिटरी बना रहे हो, राइट. गेट इनिट, तो आपने उसको दे दिया कि मैं चाहती हूँ कि गिट मेरे इस फाइल पर्टिकुलर फाइल को ट्रैक करेगा. ठीक है, तो वो आपने गिट इनिट की मदद से कर दिया. अब गिट इनिट कैसे काम करता है, अब जिस आपने मतलब जो भी आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें आप अगर आपने गिट इनिट डाला तो वो पूरा का पूरा डायरेक्टरी आपका ट्रैक होते रहेगा. ठीक है, अब उसके बाद आपने फाइल में कुछ चेंजेस किए, तो उसके बाद आपने गिट एड वाला कमांड चलाया. व्हाट इज द स्पेसिफिक कमांड, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट, बट गिट एड इज द वर्ड. ओके, इट्स अ कमांड. तो इसमें क्या होगा कि गिट एड के बाद ये स्टेजिंग एरिया पे चला जाएगा. स्टेजिंग एरिया क्या होता है, आप स्टेज पे जाते हो. ठीक है. तो बेसिकली इसमें यही होगा कि सपोज you have made some changes. ठीक है, और स्टेजिंग एरिया गिट ऐड की मदद से आप ये बताना चाह रहे हो गिट को कि आई एम रेडी टू कमिट थिंग्स. आई एम रेडी कि मैं इसको फाइनल चेंजेस बनाऊं. बट आप ये नहीं बोल रहे कि ये मेरे फाइनल चेंजेस है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरे फाइनल चेंजेस है, आप इसको ले लो. ठीक है, जब भी मैं कोड पुश करने की बात करूँ गिट टू गिटहब, सॉरी मतलब नॉट गिट टू गिटहब, आई एम सॉरी, from my local device, local repository to my GitHub. ओके, जब भी मैं बात करूँ तो आप यही कोड को भेजो जो मैंने फाइनल कर लिया. वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये फाइनल कोड रखा है. मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं रेडी हूँ. ठीक है, कमिट करने के लिए मैं रेडी हूँ, इसको अपना फाइनल कोड बनाने के लिए. आई एम रेडी, दैट इज द स्टेजिंग एरिया. कि आप सेट देख रहे हो स्टेज पे आके सब रेडी है कि नहीं. मैं रेडी हूँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट ऐड कमांड. दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ गेट ऐड कमांड. अब आप स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी पे कैसे जाओगे, कि आपने एक स्टेजिंग एरिया किया, आप अपनी जो लोकल डिवाइस पे इसको एक लोकल रिपोजिटरी कैसे बनाओगे. रिपोजिटरी तो एक्चुअली टर्म है जो हम गिटहब के अंदर यूज करते हैं. हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारा लोकल रिपोजिटरी है. नो, वी डू नॉट से दैट. जो हमारे वीएस कोड में फोल्डर है, हम ये नहीं कहते कि हमारा लोकल रिपोजिटरी है. नो, वी डू नॉट से दैट. सो जो भी है, जो कोड हमने बोला कि वो रेडी है कमिट, फाइनल कमिट के लिए, उसको हम कैसे अपना एक लोकल रिपोजिटरी बनाए जो बाद में जाके एक रिमोट रिपोजिटरी गिटहब के अंदर बनेगा. तो समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हो. जो हमारा फोल्डर है वीएस कोड में, हम उसी को लोकल रिपोजिटरी कैसे बनाए. अब ये जो लोकल रिपोजिटरी है वो अब जाएगा रिमोट रिपोजिटरी बनने गिटहब पे. ओके, वो कैसे होगा. तो गिट कमिट क्या करता है, गिट कमिट का सिंपली ये काम है कि मैंने जो कोड पहले बताया था गिट को कि मैं वो कोड रेडी है कमिट होने के लिए. दैट कोड इज रेडी, नॉट फाइनल. ओके, इट्स रेडी. ओके,
अब मैं ये बता रही हूँ कि मेरा जो कोड है जो रेडी था पहले, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन सेम चेंजेस, वी आर नॉट चेंजिंग इन बिटवीन दिस इस फ्लो के बीच में हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हमने एक चेंज किया, फिर हम ये फ्लो फॉलो कर रहे हैं। ऑल दीज 3 कमांड्स विल बी कंसेक्यूटिवली प्रोसेस्ड। तो स्टेजिंग एरिया के बाद हमने बोला गेट कमिट। अब पूरे जो कोड आपका रेडी था कमिट होने के लिए, वही कोड हम क्या करेंगे, उसको हम लोकल रिपोजिटरी, मतलब ये हमारा फाइनल कोड है जो हम गिटहब पे भेजना चाहते हैं, तो वो होता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये, हम साथ में क्यों नहीं कर सकते? इसमें ये सिंपली डिफरेंस है कि जब आप गिट ऐड करते हो, वो वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया जाता है। अब ऐसा भी एक कमांड है जिससे स्टेजिंग एरिया से वापस वर्किंग डायरेक्टरी चला जाता है। बट अगर आपने कमिट कर दिया, ओके, आप जितना चाहो ये वहां से यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज द लोकल रिपोजिटरी, बात खत्म। तो आपके जो फोल्डर है वो एक लोकल रिपोजिटरी बन गया, जिसको हम हूबहू डिट्टो हम रिमोट रिपोजिटरी में देखना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे, हम अपना पूरा कोड जो है वो हम भेजना चाहते हैं गिटहब पे, एक रिमोट लिंक पे, एक रिमोट रिपोजिटरी पे भेजना चाहते हैं। वो कमांड होता है गिट पुश। तो सबसे पहले गिट, हम गिट इनिट वगैरह करते हैं, तो हमारा ट्रैक होता है, दैट इज अ वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद गेट ऐड करते हैं बताने के लिए कि हम रेडी हैं, ठीक है। जो चेंजेस किए हमने वो रेडी है कमिट होने के लिए, फाइनल फाइनल बनने के लिए, दैट इज द फाइनल कोड, उसके लिए वो रेडी है, दैट्स नॉट द फाइनल। उसके बाद हम गेट कमिट करते हैं ये बताने के लिए कि ये मेरा फाइनल कोड है, तो ये हमारा फाइनल रिपोजिटरी है, बट वो लोकली स्टोर्ड है, उसको रिमोट में हमको भेजना है, हमें उसे गिटहब पे भेजना है सपोज। तो वो हम कैसे करेंगे, हम गेट पुश से करेंगे। These are the three very important jargons of Git. ठीक है, ये समझ गए तो, और ये समझ गए तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट ईयर में काफी काम हो जाएगा। नाउ स्टेजिंग एरिया ऐड कमांड। तो सबसे पहले कमांड क्या है, गेट ऐड फाइल नेम डॉट टेक्सटी। तो ये क्या कह रहा है कि आप ये फाइल नेम और टेक्सटी करो, ठीक है। तो ये जो कमांड है हम ये एग्जीक्यूट करेंगे। फाइल नेम डॉट टीएक्सटी क्यों लिखा है मैंने, मैं बताना चाह, सपोज बहुत सारे फाइल्स है, ओके, देयर आर मल्टीपल फाइल्स, तो वी ओनली वांट टू ऐड दिस टू आवर फ्लो चार्ट फ्लो, वी आर गोइंग टू ओनली ऐड दिस टू आवर फ्लो, कि हम इसी को पुश करना, हम इसी को बता रहे कि यही एक फाइल है जो रेडी है कमिट होने के लिए, ठीक। कमिट मतलब फाइनल, ओके। तो उसके बाद ये है डॉट, डॉट मतलब सारे फाइल्स पुश कर दो, मतलब सारे फाइल्स हमारे उस स्टेजिंग एरिया तक पहुंचने चाहिए। तो दिस इज द गिट एड डॉट कमांड। ये सबसे ज्यादा ये यूज होता है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पूरा सारा कोड ही चला जाए, बट वी कैन ऑल्सो यूज दिस, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद यू टेल गिट टू ट्रैक अ पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर, ठीक है। आप बता रहे हो कि इसको ट्रैक करो, ये मेरा फाइनल कोड हो सकता है, ठीक है। फाइल्स मस्ट बी एडेड टू द स्टेजिंग एरिया, पहले हम स्टेजिंग एरिया में इसको डालेंगे, फिर हम कमिट करेंगे उसे, ठीक है। उसके बाद हम उसे पुश करेंगे। दीज आर द 3 स्टेजेस, ओके। कमिट कमांड क्या होता है, कमिट हम ऐसे लिखते हैं गेट कमिट हाइफन एम, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हैं। क्या हाइफन एम क्या होता है, इट्स अ मैसेज दैट यू आर पासिंग। आप यहाँ पे ये तो बता रहे हो कि स्टेजिंग एरिया से मैं जाना चाहती हूँ लोकल रिपोजिटरी को, ठीक है। मेरा जो कोड है वो एक लोकल रिपोजिटरी कहलाना चाहिए। अब हाइफन एम क्या कह रहा है, हाइफन एम ये कह रहा है कि वो मैसेज हम देना चाहते हैं, वाइल कमिटिंग यू हैव टू गिव अ मैसेज, कि मैंने कुछ, सपोज मैंने एक नैव बार बनाया सपोज, या फिर मैंने एक पेज ऐड किया, सपोज होम पेज ऐड किया कहीं पे, सो वो कमिट मैंने लिखा एम मैसेज, क्या मैसेज है, ऐड अ नैव बार, ऐड अ होम पेज, एनीथिंग, ऐड अ न्यू बटन फीचर, जो भी, ठीक है। सो दिस इज द कमिट कमांड। अब यू कैन थिंक ऑफ अ कमिट कमांड एज अ स्नैपशॉट ऑफ योर कोड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया, तो आपने उस कोड को फाइनली गिटहब तक नहीं पहुंचा, दैट इज अ स्नैपशॉट, दैट इज अ कोड, ओके, दैट यू हैव चेंज्ड। वो स्नैपशॉट है, वो कैप्चर हो चुका है, वो अब चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज अ स्नैपशॉट, ओके। वो चेंज हम उसे वापस अनडू नहीं कर सकते, दैट इज द मीनिंग, ओके। स्नैपशॉट है जो हम वहां पे कॉपी करने वाले हैं गिटहब पे। पुश कमांड क्या कह रहा है कि गेट पुश, ये एक रिमोट लोकेशन, ये उसका मतलब आप कोई ब्रांच, इस पे हम बाद में बात करेंगे, चलो इस पे बाद में बात करते हैं, ये पूरे पे हम सिंपली बात करेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन और सिंपली गेट पुश, ठीक है। इस पे हम बाद में विल टॉक अबाउट दिस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कमांड गेट पुश। ये भी काम करता है, इसमें कोई
बुराई नहीं है। ओके, उसके लिए हम बस सिंपली गिट पुश लिख देंगे और हमारे जो कोड में VS कोड पे जो लोकल रिपोजिटरी हमने बनाई थी वो बन जाएगी हमारी वो हमारी लोकल रिपोजिटरी से एक रिमोट रिपोजिटरी जो गिटहब पे होस्ट होगी वो हम बना सकते हैं। ठीक है, अपलोड लोकल रिपोजिटरी चेंजेस टू रिमोट रिपोजिटरी फ्रॉम योर VS कोड टू योर गिटहब। ठीक है, अब पुश का कमांड गिट ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आगे। Now adds a new connection from local repository. So we'll talk about this later. Okay. Now, after knowing this thing, we can go back to this git status. Now, git status is something which is related to add, commit, and push. Not push basically, but add and commit. Okay. तो git status क्या बताता है आपको? Git status ये बता रहा है कि कौन सी फाइल्स हम ट्रैक कर। सपोज यू हैव अ फोल्डर कॉल्ड hack/, इसमें आपने मतलब और फोल्डर्स बनाए हैं। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज देयर आर 8 फोल्डर्स। अब आपने CD किया 1, आपने CD किया 2, आपने CD किया 3 और आपने सब में क्या किया, आपने ये लिखा कि git init। अब ये 3 फाइल्स इसके अंदर आप जो भी फाइल्स बनाओगे ये सारे फोल्डर्स git ट्रैक कर रहे हैं, बट बाकी जो 4 5 6 7 8 है वो ट्रैक नहीं कर रहा। सो गिट स्टेटस आपको ये बताएगा कि कौन से ट्रैक हो रहा है, कौन से ट्रैक नहीं हो रहा है। इट विल ऑल्सो टेल यू कौन सा वर्जन है जो एड स्टेजिंग एरिया तक पहुंच गया है बट कमिट नहीं हुआ है। सपोज हमने ऐड कर दिया ये फाइल को बट हमने अभी तक कमिट नहीं किया, तो वो ये भी बताएगा कि आपने कौन सा ऐड किया है बट आपने कमिट नहीं किया। इट्स वेटिंग टू बी कमिट, टू बी कमिटेड, राइट। सो गिट स्टेटस आपको ये बताता है। अब सपोज वो एक गिट रेपोजिटरी ही नहीं है, सपोज इट्स नॉट अ गिट रेपोजिटरी, तो वो क्या बताएगा, इट विल टेल यू दैट इट इज नॉट अ गिट रेपोजिटरी। ओके, ये बताएगा। आपने गिट इनिट नहीं किया है तो ये आपको बताएगा कि ये गिट रेपोजिटरी नहीं है, वो कोई एरर नहीं है, वो बस है कि ये कोई गिट रेपोजिटरी नहीं। दीज आर द बेसिक कमांड्स। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ब्रांच, जिसके बाद you'll be able to understand this thing local ये जो कि यहाँ पे लिखा add origin, ये something main something कुछ लिखा हुआ है या। So as you guys can remember, हमने एक git GitHub करके एक repository बनाया था, मतलब GitHub session करके हमने एक repository बनाया था github.com पे। ओके, नाउ ये ऐसा दिख रहा था। हमने आपको ये भी बोला था कि आपको HTTPS लिंक आपको यहाँ से कॉपी करनी है और वो आप git clone और उसके बाद लिंक ये डालोगे तो आपका आप CMD पे डालोगे तो वो आपका कैसे वो क्लोन हो जाएगा। वो फाइल खोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने VS कोड पे इसी रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे एंड वहाँ पे हम कुछ चेंजेस करके इसमें डालेंगे और ये लिंक हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज माय फोल्डर। ठीक है, इसमें सपोज मैंने चलो लेट्स क्रिएट दिस फर्स्ट फोल्डर। इसके अंदर नहीं, इसके बाहर एक और सेकंड करके मैंने एक फोल्डर बनाया, राइट। अब चलो इसके अंदर मैं एक चलो अपने नाम का एक mania.txt बनाती हूँ और इसके अंदर चलो hack/.txt बनाएंगे। सब मतलब I'm just taking it as an example .txt file, but आप जब कोड करोगे obviously that will be in HTML, CSS, JavaScript, JSS, ऐसे कोड्स चाहिए। ठीक है, बट हम एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ले रहे हैं जस्ट टू टेल कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। ओके, हियर इज द कैच दैट हमने शायद गिट इनिट पहले कर दिया था, इफ आई रिमेम्बर राइटली। मैंने गिट इनिट पहले कर दिया था। सो ये और ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो गिट हब सेशन है, ये चीज़ सपोज ये गिटहब सेशन जो भी है, ठीक है, ये पूरा फोल्डर हमारा ट्रैक हो रहा है गिट, इसीलिए ये यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगर गिट स्टेटस करेंगे तो हमें ये बताएगा कि गिट स्टेटस मुझे सिखाना था
इसीलिए हमने इतना कुछ किया। ये बताएगा कि ऑन द ब्रांच में, ये चलो आप बाद में सीखोगे, नो कमिट सेट्स, मैंने अभी तक कोई भी कमिट वाला कमांड नहीं चलाया है। अनट्रैक्ड फाइल कौन से हैं, ऐसा कोई भी अनट्रैक्ड फाइल नहीं है। यूज गिट ऐड फाइल टू इंक्लूड व्हाट इज विल बी कमिटेड, ठीक है। ये अब रेड से बता रहा है कि आप गिट ऐड करना, तो इनको ट्रैक करना, मतलब इनको ऐड करना उसमें, ये दोनों में नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों अनट्रैक्ड है और इनको अगर आप ऐड करोगे तब ये पूरे ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है। पहले ऐड होगा, फिर कमिट होगा, फिर पुश होगा, राइट। सो ये पूरा फोल्डर ट्रैक हो रहा है। ओके, लेट मी क्लियर दिस आउट। ये फोल्डर ट्रैक हो रहा है बिकॉज ये हमने मतलब वी हैव इनिशियलाइज्ड अ गिट रिपोजिटरी, ठीक है। हम इसको अपना एक रिमोट और लोकल रिपोजिटरी बना सकते हैं। हम ये बता रहे हैं गिट इनिट से। अब इसे हमें अगर बताना है गिट को कि हम ये फाइल्स फोल्डर्स में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आप ट्रैक करते रहो, स्पेसिफिकली ये फाइल्स में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको इसमें गिट ऐड करके इनका नाम लिखना पड़ेगा, तब वो इसमें जो भी चेंजेस है वो लेगा, ठीक है। उसके बाद गिट कमिट, उसके बाद गिट पुश होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, चलो लेट्स रन दिस कमांड। सो ये कमांड चलाने के बाद ये आपका बाहर आ गया। मेरे पास एक और फाइल थी, चेंज, लेट मी जस्ट चेक द नेम। मेरे पास एक और थी, सेशन 1, आई थिंक सेशन 1 करके थी, नहीं, सेशन 1, यस, देयर इज अ फोल्डर मैंने बनाया था और डेस्कटॉप पे सेशन 1 करके। अगर इसमें मैं गेट स्टेटस चेक करूँ तो ये क्या दे रहा है, मुझे एक एरर दे रहा है कि इट्स नॉट अ एरर बट इट्स अ मैसेज, जो एरर इसको बोलते हैं, दिस इज एरर, ठीक है। और ये है, ये अनट्रैक्ड है अभी तक, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हमें करवाना है तो गिट ऐड करके देना पड़ेगा हमें। और ये दे रहा है मैसेज कि नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज गिट, ठीक है। ये बता रहा है कि ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है, इट्स नॉट अ गिट रिपोजिटरी। अगर मुझे इसे गिट रिपोजिटरी बनाना है तो इसे गिट इनिट करना होगा मुझे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इनिशियलाइज। अब हम गिट स्टेटस देखेंगे। अगर इफ वी चेक गिट स्टेटस ओवर हियर, तो यहाँ पे नो, ये जो भी आप बाद में समझोगे, और यहाँ पे नो कमिट सेट्स, नथिंग टू कमिट, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस मच ऑल, दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। चलो इसमें से ये डिलीट कर देते हैं, एक डिलीट कर देते हैं इसको हम, ठीक है। ना चलो, ये txt फाइल है, ये सब हो रहा है। इसमें मैंने लिखा हाय देयर, माय नेम इज Anita from and from /club club, right, from /club। चलो नेक्स्ट लाइन चले जाते हैं, वेलकम टू स्टडी जैम्स, राइट। चलो मैंने ये कुछ छोटा सा मैसेज लिख दिया है यहाँ पे, दैट इज द कोड लाइंस, ठीक है। इनको अच्छे से कोड लगने के लिए चलो नेक्स्ट टाइम में डाल देते हैं। सो सपोज हमारे कुछ कोड है अभी तो ये txt है तो कुछ भी लिखते हैं, बट जनरली आपके कुछ कोड ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या, इससे मैं चाहती हूँ कि ये जो मैसेज है, अब आप यहाँ पे सोर्स वाले में जाओगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये चेंजेस हुए, बट इससे अभी तक द सिलेक्टेड सोर्स प्रोवाइडर डज नॉट हैव एनी सोर्स कंट्रोल सिस्टम, ओके। सो ये चेंजेस हुए हैं, वो ये दिखा रहा है, देखो ये ग्रीन पोर्शन इज, जैसे ये रेड इज फॉर क्या हट रहा है, क्या डिलीट हो रहा है, एंड दिस ग्रीन पोर्शन और स्लाइटली ग्रीन इज फॉर क्या ऐड किया मैंने, ठीक है। ये आप यहाँ पे आगे देख सकते हो। कमिंग बैक, चलो एक बार इसको भी खोल ही देते हैं यहाँ पे साइड में, ये ऑन ट्रैक दिखा रहा है। नाउ इफ वी डू गिट ऐड डॉट, गिट ऐड डॉट क्या करता है कि यहाँ पे जो भी इस फोल्डर में जो भी डायरेक्टरी खुली है, अच्छा जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेंज इट टू the repository that is open here, so not the repository, the folder. This is a github session, yeah, this is the current working directory जो हमने यहाँ पे खोल के रखा है। now इसमें ये git status देखो, git status कैसा आ रहा है,
अब ये बता रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है हमारा फर्स्ट, इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कुछ ऐड ही नहीं किया जिसे हम ट्रैक्ट कमिट करें, बट यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट है। अनट्रैक्ड को ट्रैक करने में क्या करना पड़ेगा, हमें गिट को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आप इसे ट्रैक करो। वो ऐड कमांड्स होता है जो जिससे वो स्टेजिंग एरिया पे पहुंचे, जिससे वो बताए कि आई एम रेडी टू कमिट। ठीक है, मैंने तो सारे चेंजेस कर दिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं गिट ऐड, आई कैन डू दिस कमांड दैट आई कैन, चलो मैं गेट ऐड डॉट कर देती हूँ, दैट इज द मोस्ट यूजफुल कमांड, बट हम स्पेसिफिकली मान्य डॉट टेक्स्ट को भी गेट ऐड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आई नीड टू चेंज इट टू फर्स्ट एंड गेट ऐड टेक्स्ट। अब यहाँ पे अब गेट स्टेटस अगर आप देखोगे आपको ये ग्रीन में आ गया, दिस वाज ओरिजिनली इन रेड। अभी क्या बता रहा है कि नो कमिट सेट, मैंने अभी भी कमिट वाला कमांड नहीं चलाया है। चेंजेस टू बी कमिटेड, चेंजेस टू बी कमिटेड मतलब आई एम रेडी टू कमिट, वो स्टेजिंग एरिया तक आ गया है, इसीलिए उसको ग्रीन में दिखा रहा है। ठीक है, और अनस्टेज करने के लिए भी, मतलब मैंने आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम स्टेजिंग एरिया से वापस हम वर्किंग डायरेक्टरी वाले मतलब फ्लो चार्ट में उल्टा डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, बट एक बार कमेंट करने के बाद हम वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हम अनस्टेज कर भी सकते हैं, आप देख रहे हैं उसको बाद में करके। और ये जो फाइल है ये नई फाइल हुई है जो ट्रैक हो रही है। ठीक है, जो जिसे वो गिट ट्रैक करेगा। ठीक है ना, अब इस पे नेक्स्ट कमांड हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि हमने ऐड कर दिया। अगर अगर हम गेट ऐड ये भी करते, दिस ऑल्सो वुड वर्क। ओके, इसमें कुछ नहीं, सपोज मैं जाती हूँ गेट ऐड करती हूँ। ठीक है, गेट स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, वही वही सेम चीज़ है, देयर इज नथिंग न्यू जो ये मुझे बता रहा है। ठीक है, अब गेट ऐड हो गया, अब गेट ऐड के पास हमें गेट कमिट करना है। तो कमिट कर रही हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैसेज दे रही हूँ कि फाइल फर्स्ट फाइल ओके add a new text file। ठीक है, दिस इज माई कमिट मैसेज, मैंने कमिट कर दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि कहाँ पे कमिट हुआ है। ठीक है, ये बाद में आप देख लेना क्या है, मैं ये ब्रांच वाले में बताऊंगी एक्चुअली ये सब क्या है। ओके, ये आपका कमिट आईडी एक जनरेट करते हैं वो, जिससे वो ट्रैक रखते हैं कि कौन क्या क्या सब, वो सारे सेटिंग्स गेट कॉन्फ़िग से वो लेते हैं और ये सब इसमें इसके थ्रू ट्रैक होता है। ऐड अ न्यू टेक्स्ट फाइल, ये आपका मैसेज है। कितनी फाइल्स चेंज हुए, एक। कितने इंसर्शन हुए, प्लस, वो प्लस से दिखाया जाता है कितने इंसर्शन हुए। अगर आप ये देखोगे अब जो भी 4 इंसर्शन प्लस दिखा रहा है, क्रिएट मोड इतना फर्स्ट क्रिएट मोड पे है। तो ये बस दिखा रहा है कि कितनी फाइल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी फाइल्स चेंज हुए, ये एक आईडी जनरेट हुआ और आपका मैसेज ये, दिस इज इम्पोर्टेंट पे। अब अगर मैं चेक करूँ अपने github.com पे अगर मैं चेक करूँ तो इसमें अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वे ऐसा का ऐसा ही है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे मैंने जो भी चेंजेस किया वो भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब वो मैंने ऐड किया तो वो स्टेजिंग एरिया पे चला गया, वो रेड से ग्रीन हो गया था, राइट। उसके बाद मैंने जब कमिट किया तो वो स्टेजिंग एरिया से एक लोकल रिपोजिटरी बन चुकी जो रेडी है यहाँ पे आने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पुश करना होगा। ठीक है, पुश कमांड यूज करना होगा। नाउ फाइनल कमांड गेट पुश। अब यहाँ पे बहुत चीजें बताई जाती हैं। अब इधर पे आओ, ये चीज बाद में बता दूंगी थोड़े से। इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट्स 4 डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 100% हो गया है। ठीक है, डेटा कंप्रेस, चलो ये सब ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि न्यू ब्रांच मेन टू मेन, मतलब यहाँ पे जो है ये कहाँ पे है, ये मेन में है। ठीक है, सपोज सपोज करो डन, जस्ट इमेजिन ये पूरा एक ब्रांच है। ठीक है, उसका नाम है मेन। अब इसके मेन से वो गिटहब के मेन में जा रहा है, ये किसका है, ये हमारे लोकल रिपोजिटरी का है, उसका मेन के बारे में बात हो रही है। ये किसका है, ये गिटहब वाले मतलब रिमोट के बारे में, इसके मेन से इसके मेन तक से। जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो डिफॉल्ट हमारा ब्रांच होता है, ब्रांच क्या होता है वो बताते हैं।
बट जो डिफॉल्ट होता है उसे मेन बोलते हैं। सब कुछ डिफॉल्ट एक मेन में होता है, ठीक है। हम और भी बना सकते हैं बट हम डिफॉल्ट मेन होता है, तो इसके मेन से उसके मेन तक चला गया, दैट इज द डिफॉल्ट थिंग, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे गिटहब पे, तो ना फिर रिफ्रेश, लुक इसका पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं देखूंगी ये फर्स्ट फाइल जो मैंने वहां से भेजी थी, वो पूरी की पूरी फर्स्ट फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। हाय देयर। उसके बाद अम, ये जो ऐड न्यू टेक्स्ट फाइल, इसमें 4 इंसर्शंस थे, 0 डिलीशंस थे जो माइनस से दिखाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 मिनट पहले हुई है और इसमें यहाँ पे कमिट हिस्ट्री आती है। अब कमिट हिस्ट्री में तुम्हारा आईडी, जो तुम्हारा आईडी वीएस कोड पे तुम्हें दिखाया था, वो आईडी यहाँ पे दिखाई गई। इसको अगर खोलोगे तो सारे डिटेल्स दिखाएंगे, ठीक है। प्लस मतलब ये इंसर्शंस है, ठीक है। माइनस तो यहाँ पे है नहीं, जो भी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इस, और आपका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा एज कमिट, ठीक है। So we have successfully learned all about staging area, that is the add command, commit command, push command, and this flowchart, and कैसे इसको action में करते हैं, कैसे इसको actually करते हैं, हमने सब सीख लिया। Next is branch, okay. So regarding branches, firstly I would like to talk about why are branches required even. So the default, look, when we do whatever we have done previously, जो default branch था उसको हम main कहते हैं, okay, main और master branch, okay. master और main branch क्या है, वो सारे कोड को contain करती है, okay. It's just like this image that suppose this is our initial code जो मैंने किया था, तो इसको हम master या main branch कहते हैं, ठीक है। दिस इज वन वर्जन ऑफ दैट कोड। ये क्या लिखा है मैंने, इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट डिफॉल्ट ब्रांचेस में, तो इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट मतलब all of this code is contained in that branch, okay. what type of code, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, but all of that code उस branch में है। आप अगर उस branch को खोलते हैं आपको अपना वो code दिखेगा, तो उसको हम branch कहते हैं। इंडिपेंडेंट के बारे में हम अभी बात करते हैं, बट एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट है वो, ये समझ में आना चाहिए कि वो एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट ही है, ठीक है। सारा कोड मेरे एक ब्रांच में रहता है, ठीक है। न्यू ब्रांचेस शुड बी क्रिएटेड टू वर्क ऑन न्यू फीचर्स विदाउट अफेक्टिंग द मेन कोड। अब ये बता रहा है कि हमें क्यों ब्रांचेस यूज करनी है। अब सपोज हमने कोई बड़े मतलब एक अलग किसी और के रिपोजिटरी को अपने में काम करना है, सपोज उसके रिपोजिटरी में कुछ कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे एक डार्क बैकग्राउंड ऐड करना है, थीम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका जो भी कोड है वो मैं अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगी। सिंपली कैसे एक्चुअली कैसे लाना है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ऐसे एक्चुअली लाना है। बट सपोज वो मैंने गिट क्या क्लोन कर लिया, उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि अ, मैं जब अपना, जब उसका जो मेन ब्रांच था, मतलब उसका जो डिफॉल्ट ब्रांच है वो उसका मेन है, ठीक है, मैंने उसको क्लोन कर लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड पे उसके मेन ब्रांच पे काम ना करूँ, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू वर्क इन द मेन branch. I want to work where I want to create my own branch, my own line of development. I want to create my own line of development and मैं क्या करूँगी, मैं उसके मैं अपने उस ब्रांच से उसकी मेन ब्रांच जो गिटहब पे उसका अकाउंट है उसके मेन ब्रांच पे पुश करूँगी कोड। ओके, लेट मी रिपीट दैट अगेन। हमने जब देखा था हमने जब वीएस कोड पे अभी जस्ट रिसेंटली देखा था, तो हमने ये देखा था कि ये मेन से मेन जा रहा है। ये किसका मेन है, ये है आपका जहां जा रहा है, दैट इज गिटहब पे, दैट इज रिमोट लोकेशन पे। ये क्या है, मेरा लोकल लोकेशन। मैंने क्या किया, मैं अपने लोकल डिफॉल्ट जो था मेन, मैंने उसी पे काम किया। अब मैं अगर इसकी जगह किसी और ब्रांच, एक नया ब्रांच बनाती हूँ, ठीक है। जब भी हम किसी ब्रांच के अंदर रह के, मतलब अभी हम किस ब्रांच में, मेन ब्रांच में, अब हम इस ब्रांच में रह के एक नया ब्रांच बनाते हैं, सपोज मैंने उसका नाम न्यू दिया है, ठीक है। अब वो न्यू ब्रांच में क्या होगा, वो न्यू ब्रांच में जो भी हम जिस करंट ब्रांच में, उसका सारा कोड उस न्यू ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। मेन का पूरा कोड न्यू ब्रांच में आ जाएगा, लाइक मेन का पूरा कोड किस में आ जाएगा, न्यू में आ जाएगा, राइट। बट न्यू में जो भी चेंजेस करेंगे हम, वो न्यू में हमने कुछ प्लस प्लस किया है, ठीक है, न्यू में।
वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दिस वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन द मेन ब्रांच। ठीक है, जब तक न्यू में हमने कुछ चेंजेस किए हैं वो हमारे मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हम कोई चेंजेस किए हैं न्यू ब्रांच में, वो मेन पे तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक हम उसे साथ में मर्ज ना करते। मर्ज क्या होता है? दो ब्रांचेस को मिला देना। इट इज जस्ट लाइक यस, रिवर आई गेस। मर्ज एक तरह से मैंने एक जगह से, मेरा मेन कोड है मेन, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, मैंने वहां से एक नया ब्रांच निकाला। ठीक है, पेड़ की तरह भी ले सकते हैं रिवर, वहां से एक नया ब्रांच निकला जिसमें क्या कोड है? उस ओरिजिनल कोड का ही है। ठीक है, अब मैं वहां पे कुछ चेंजेस करूंगी, वो इस ओरिजिनल वाले लाइन पे, लाइन ऑफ डेवलपमेंट पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो ओरिजिनल लाइन ऑफ डेवलपमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ये नया जो लाइन ऑफ डेवलपमेंट न्यू ब्रांच हमने बनाया वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसमें जो भी चेंजेस होगा वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट है। राइट, और उसको डिफॉल्ट ब्रांच हमने क्या बोला? डिफॉल्ट ब्रांच इज मेन। राइट, डिफॉल्ट ब्रांच इज मेन। तो क्या, और ब्रांच हम क्यों यूज करते हैं? सपोज मैंने जो भी क्लोन किया था वहां से, गिटहब से किसी का और का रेपो जिस पे मुझे काम करना था, सपोज मुझे वहां पे ऐड करना है डार्क थीम। राइट, अब मैं क्या करूंगी, मैं उसको क्लोन किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, उस मेन ब्रांच पे मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी, मैं उस मेन ब्रांच को छोड़ के एक और बनाऊंगी, डार्क थीम करके मैं एक ब्रांच बनाऊंगी। अब मेरे मेन ब्रांच का सारा कोड उस डार्क थीम वाले ब्रांच में आ गया। राइट, अब वो डार्क थीम वाले में मैं अपना जो मुझे चेंजेस करना है मैं उसमें करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं वो डार्क थीम और मेरे वाले लोकल वाले मेन को मैं क्या करूंगी, मर्ज कर दूंगी। अब या फिर नहीं, मर्ज नहीं करना है, वो डार्क थीम वाले जो ब्रांच है आपका, उससे आपको आपको पुश करना है कोड वहां पे उसके मेन पे। ठीक है, आप वहां पे उसको, मतलब उसके मेन रिमोट वाले पे आप पुश करोगे कोड। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां से क्लोन वगैरह किया, दैट इज नॉर्मल, वहां से आपने कॉपी किया इसे। ठीक है, यू हैव कॉपीड इट। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यू हैव मेड अ न्यू ब्रांच जिसमें आपका वो कोड पूरा कॉपी। अब आपने जो भी कोड चेंज करना है वो आप इस नए वाले ब्रांच पे करोगे, जो आपका फीचर ब्रांच है आप उसमें चेंज करोगे। और वही कोड आप, मतलब आप जब पुश करोगे तो आप इस ब्रांच को पुश करोगे। ठीक है, आप उस ब्रांच को पुश करोगे। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो इंसान वहां पे आपका काम देख रहा है उसके पास ब्रांचेस की तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका कोड बेस एक ब्रांच की तरह देखता है। ठीक है, अब इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा चलो इसके बारे में विल टॉक अबाउट लेटर, कि पुल पहले करना होता है। विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। तो ब्रांच हम ये समझ गए कि ब्रांच क्या होता है, कि इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट होता है। जस्ट लाइक जैसे इस इमेज में है कि ये हमारा मैंने यहाँ से एक नया ब्रांच बनाया है लिटिल फीचर करके। ठीक है, अब ये आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता, सब उस यहाँ पे वो मैंने अपना फीचर ऐड कर दिया, मतलब ये ब्रांच मैंने बनाया और यहाँ पे उसका डेवलपमेंट खत्म हो गया। मैं इसे मर्ज कर दूंगी, नेक्स्ट स्टेज पे मैं इसे मर्ज कर दिया इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐड कहीं इस और ब्रांच में मैंने सीधा इसको मर्ज यहाँ पे कर दिया, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से मैंने एक और ब्रांच पे एक फीचर कर दिया, अब ये पूरा हमारा बिग फीचर चल रहा है। अब ये बाद में मैं मर्ज कर सकती हूँ मेन पर। ठीक है, अब ये मेरा मेन है, ये जो सेंटर है वो मेरा मेन है, यहाँ से मैं बहुत सारे ब्रांचेस निकाल सकती हूँ और बाद में इन्हें मेन में भी मर्ज कर सकती हूँ। ठीक है, दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ दिस, कि एक इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, अब न्यू ब्रांचेस अब क्यों कब बनाना, जब भी आप एक नया फीचर ऐड कर रहे हो आपको मेन कोड, जैसे मैंने बोला दैट इज द मेन मोटो, कि आप जब नया कोड बना रहे हो आपके पास दो वर्जन ऑफ कोड रहेंगे। एक आपका मेन कोड जो जैसा कैसा है, जो आपका वैसा का वैसा ही है जैसा आपने क्लोन करते समय लिया था, वो एक मेन कोड है। अब आप अपने ब्रांच में जो भी चेंजेस बना रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, वो आपके मेन कोड में थोड़ी, मेन ब्रांच में थोड़ी आपको वो अफेक्ट कर रहा है, वो तो वैसे ही इंटैक्ट है। तो न्यू ब्रांचेस इसीलिए आपको बनाते हैं कि आज आप अपने मेन कोड को अलग रख सको और आपने जो चेंजेस किए हैं वो आप अलग रख सको। बाद में मर्ज करना है तो मर्ज कर दो, बट नहीं करना है मत करो, उसको डायरेक्टली पुश कर दो जो नए वाले को है। ठीक है, जो भी है, ये ही मेन कंसेप्ट है ब्रांच क्यों यूज करते हैं ये। अब ये जो छोटे छोटे कमांड्स है मैं ये सब चला के आपको दिखाती हूँ। ओके, सो सपोज मैंने ये कर दिया,
अब चलो मैं गेट मुझे चेक करना है कि कौन सा ब्रांच है। देखो यहाँ पे गेट ब्रांच लिस्ट ऑल द ब्रांच नेम्स, ठीक है। सपोज मैंने गेट ब्रांच किया तो ये बता रहा है मेन ब्रांच, एक ही ब्रांच है यहाँ पे, उसका नाम है मेन। और ये स्टार क्या बता रहा है? ये स्टार बता रहा है कि मैं इस मेन ब्रांच पे हूँ, मेरा जो करंट स्टेट है वो इस मेन ब्रांच पे है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड क्या कर सकते हैं, हम एक नया ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है। उसका कमांड ये रहा, गेट ब्रांच फीचर ब्रांच, ये हमारा क्रिएट न्यू ब्रांच। तो गेट ब्रांच, चलो वो डार्क थीम कर देते हैं उसका नाम, ठीक है, गेट ब्रांच। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया ब्रांच बना दिया, राइट, आई हैव क्रिएटेड दिस न्यू ब्रांच, फाइन। अब मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी फिर से कि कितने ब्रांचेस हैं हमारे पास। अब ये बता रहा है कि मेरे पास दो ब्रांचेस है, एक मेन है और एक डार्क थीम है। बट मैं अभी भी कहाँ पे हूँ, मैं मेन पे ही हूँ। ये वर्जन कहाँ पे है, ये कहाँ का ब्रांच यूज हो रहा है, ये मेन का ब्रांच है। अब सपोज मुझे मेन से डार्क थीम में जाना है, तो टू स्विच फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर टू चेक आउट, ठीक है। तो गिट चेक आउट डार्क थीम, राइट, डार्क थीम, ठीक है। मैंने ये किया तो बताया इसने कि स्विच टू द ब्रांच डार्क थीम, ये उसने कर दिया। अब ये जो कोड है मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, ये किसका कोड है, ये है मेरा डार्क थीम का ब्रांच का कोड। अब ये सेम टू सेम दिख रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये इसलिए है क्योंकि मैंने मेन ब्रांच में रह के मेन ब्रांच में रह के एक डार्क थीम करके मैंने ब्रांच बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका पूरा कोड मेन ब्रांच का डार्क थीम में है, तो दे लुक अलाइक, ठीक है। अब सपोज हाई फ्रॉम डार्क थीम, हाई फ्रॉम डार्क थीम कर दिया मैंने। ये जो कोड है मैंने कहाँ पे चेंज किया, आई हैव चेंज दिस कोड इन द डार्क थीम। बट अगर मैं फिर गेट चेकआउट मेन करूँ, ठीक है, तो ये क्या, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद द, जस्ट अ मिनट। सो आई हैव entered get checkout dark theme, so ये क्या क्या इसमें डार्क थीम में इसने चेंज कर लिया ना। अगर मैं गेट ब्रांच करती हूँ तो ये बता रहा है कि मैं डार्क थीम वाले मोड में हूँ, ठीक है, आई एम देयर इन दिस डार्क थीम वाला ब्रांच। नेक्स्ट इज अगर मैं गेट मर्ज, मैं डार्क थीम में हूँ, okay, एक काम करते हैं, गेट चेकआउट करते हैं पहले मेन, ठीक है। ये हमारा स्विच टू ब्रांच में। अब हम इसमें गेट मर्ज करते हैं, गेट मर्ज करते हैं ब्रांच, दूसरा ब्रांच दैट इज हमारा डार्क थीम वाला, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट है, ठीक है। मतलब हम मेन में हैं, ठीक है, हमने चेकआउट किया मेन को और हमने उसमें डार्क थीम को मर्ज कर दिया, दे आर ऑलरेडी अप टू डेट, वो दोनों सेम टू सेम, इसलिए ये काम नहीं किया। अब गेट लॉग अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये बता रहा है हेड है, ये हमारा क्या बताता है, इट शोज डाउन, इट शोज यू द कमिट हिस्ट्री ऑफ द करेंट ब्रांच, ओके। अब स्विच क्यों यूज होता है, स्विच यूज होता है कि ये उस एक ही लाइन पे ब्रांच भी बना सकता है और उस पर स्विच भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद गेट ब्रांच अगर मैं करूँ डी, this is to change the name, sorry, to delete, sorry, अगर मैं क्या बोलते हैं if I delete dark theme over here, ठीक है, तो ये बोल रहा है deleted dark theme, उसने वो ब्रांच को ही डिलीट कर दिया। and there was one more to rename it, okay, so वो भी आप देख सकते हो, उसमें एक और फीचर होता है to rename a branch. Now moving on to the next topic, that is fork and PR. Okay, fork and pair, pull and get ignored. These are our last, means not last, but last of the basic terminologies part. So let's talk about fork. Now fork क्या होता है, उसके लिए हमें GitHub पे जाना होगा फिर से. So for the example, I've picked a random. I've picked a just a sec, not this, but this. Yeah. So I've picked a random repository of someone named this, whose name is
The app's name is Danizo, I guess. So this is the repository. Okay. Now I was about to tell you what is fork. Okay, fork. Look, here is a section of fork. This is how you are going to fork it, right? So fork में क्या होता है कि आप ये जो किसी का repository है, this handle, इसमें आप क्या करते हैं, इसकी जगह आप अपने नाम का लिखते हैं और उसके बाद लिखते हो, मतलब इसी का एक कॉपी आपके नाम, मतलब आपके आईडी में इसी का एक कॉपी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप चेंजेस करके आप इसे पुश कर, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसे फोक कैसे करना है, सिंपली आपने अपना एक कॉपी बनाना है, जिसे आप ऐसे, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे में, तो ये रहा एग्जिस्टेड, मतलब ये कहीं होगा, जैसे जैसे ये किसी का भी तो है, तो इसने क्या किया, इसने खुद का एक कॉपी बना दिया, किसका, डैनिजो ऐप का, बट ओरिजिनली ये किसका था, ये इस हैंडल का था, तो इसने क्या किया, उसको अपने कर दिया, दिस इज कॉपी, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इट इज फोर्क्ड फ्रॉम दिस, इसका मतलब उसने बस एक कॉपी बनाया। अब हम फोर्क क्यों करते हैं, तो फोर्क हम इसलिए करते हैं, पर हम जो भी चेंजेस करेंगे, हम जो अपनी VS कोड से गिटहब में पुश करते हैं कोड, वो हम इसके ओरिजिनल वाले में हम पुश नहीं करेंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू पुश इट इन द ओरिजिनल वन, बट वी आर गोइंग टू पुश इट इन द फोर्क्ड वन, ओके। तो इसीलिए हम इसमें पुश नहीं करेंगे डायरेक्टली, दिस ओरिजिनल वन, इसमें हम पुश नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने वाले वर्जन पे, जैसे यहाँ पे देखिए, हम करेंगे, ये अपने किसी ने बनाया है, तो हम इस पे ये आदमी पहले अपने वाले कॉपी पे पुश करेगा, उसके बाद वो यहाँ से वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि क्या ये कोड सही है, जो मैं वहां पे वो आदमी चेक करेगा कि वो मर्ज कर सकता है कि नहीं, तो दैट इज ऑल अबाउट फोर्क। नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज अ पीआर। पीआर मीन्स अ पुल रिक्वेस्ट। लुक, यहाँ पे द ओरिजिनल वाले पे अगर हम चाहें, तो यहाँ पे पीआर आती है, पुल रिक्वेस्ट। अब पीआर क्या होती है, इन लोगों ने अपना एक फोर्क बनाया था जिस पर उन्होंने काम किया था, ठीक है, अपना एक कॉपी बनाया था इन सब ने, उस पर उन्होंने काम किया था, और वो फिर वहां से रिक्वेस्ट भेजते हैं कि क्या ये सही है, जो आप इसको जो आप मेरे वाले कॉपी को अपने वाले ओरिजिनल वाले से मर्ज कर सकते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी को हम पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर ये सही है तो ये अप्रूव हो जाएगी, अगर गलत है, उसको नहीं पसंद है, तो ये डिक्लाइन कर देगी। तो पुल रिक्वेस्ट कुछ नहीं होता, एक फोर्क्ड वाले में एक कॉपी रिपोजिटरी को ओरिजिनल रिपोजिटरी में अगर कंबाइन करना है कि नहीं, तो उसका कोड एक्सेप्ट करना है कि नहीं, उसी को हम पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, कंबाइन, हाँ, उसी को हम पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। दैट इज ऑल अबाउट fork and pull request. Now we'll talk about what is pull. Now suppose इतने सारे लोगों ने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, सपोज ये हटाओ, सपोज ये एक नॉर्मल रिपोजिटरी है, ठीक है, अब इस पे मेन ब्रांच पे इस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, अब इतने सारे लोगों ने पुल रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, जो भी है, पुल रिक्वेस्ट पे पुल रिक्वेस्ट है। अब इसने जो पुल रिक्वेस्ट, ये वन पहले आया था, ये बाद में आया था, अब इसने जो पुल रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, इसमें जो चेंजेस थे वो उसने नए चेंजेस ऐड किए, ठीक है, सपोज इसका वैलिड है, इसका टिक है, इसका सही है, अब इसने जो भेजा, इसने इसके पहले वाले जो कोड था यहाँ पे, उसने उसी कोड को अपने कोड के साथ चेंज करके भेज दिया, उसने इसका कोड को लिया नहीं, क्योंकि उसने लिया ही नहीं उसका कोड। अब मैं सपोज एक रेपोजिटरी में हूँ, ठीक है, मैंने उस रेपोजिटरी में किसी और ने वहां से कुछ पुश किया, अब मेरे पास उसका अपडेटेड वर्जन नहीं है, उस कोड बेस का मेरे पास एक अपडेटेड वर्जन नहीं है, तो उसने पुश किया, मेरे पास वो अपडेटेड मेरे पास VS कोड पे नहीं है, अब मैंने बिना वो अपडेटेड वर्जन लिए मैंने वो पुश कर दिया। अब मैंने पुश क्या किया, मैंने एक पुराना वर्जन पे खुद का काम करके चेंजेस करके मैंने पुश कर दिया, बट मैंने उसका जो उसने दूसरा इंसान ने जो पुश किया था, मैंने वो नहीं लिया, और मैंने अपने एक ओल्डर वर्जन पे कोड का एक ओल्डर वर्जन पे चेंजेस करके पुश किया। अब मेरे कोड में दिक्कत क्या है, मेरे कोड में ये दिक्कत है कि अगर मेरा कोड एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें वो इंसान ने उस इंसान ने जो भी चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मेरे कोड में मैंने कहीं भी उसका कोड उठा के अपने कोड में नहीं, मैंने तो पुराने कोड पे काम किया, मैंने तो पुराने कोड में उठाया और उस पर चेंजेस किए, तो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो
हम क्या करते हैं, बिफोर पुशिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर लोकल रिपोजिटरी टू आवर गिटहब, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पुल करते हैं। गिट पुल करके एक कमांड होती है, ठीक है। पहले हम गिट पुल करते हैं, उसके बाद हम पुश करते हैं। गिट पुल क्या इंश्योर करती है कि हमने सारा जो भी कमांड है वो हमने वी हैव पुल्ड द वेरी लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कोड फ्रॉम गिटहब। उस पे फिर हम अपने चेंजेस को करते हैं और फिर हम उसे पुश करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुल पहले करना है, फिर ही पुश करना है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गेट इग्नोर। सो गेट इग्नोर आपका एक इसी में मैं एक फाइल बनाती हूँ, डॉट गेट इग्नोर। देखो इसका सिंबल कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इस फाइल में क्या डाल दिया, सपोज ये नहीं, सपोज में जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपका एक अलग से फाइल होगा, कि टेक्नोलॉजी को बाहर कर दो, यस, ठीक है। आपका एक अलग से फोल्डर में फाइल होगा जो आपका कहलाएगा डॉट env, ठीक है। इसका तो सिंबल देखो यहाँ पे आ गया। अब env क्या करता है, आपका पब्लिक APIs या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। इट होल्ड्स एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इट कुछ भी API हो गया, की API की हो गया, मतलब API नहीं, API की हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब वो होल्ड करता है, ठीक है। तो इसे हम रिवील नहीं कर सकते, हम इसे गिटहब पे नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर हम गिटहब पे डाल दें तो बहुत लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। हम इसे रिवील नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसे हाइड करते हैं। हम बिना हम से नहीं चाहते कि ये पुश हो, तो हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर में जाके, ये गिट इग्नोर क्या होता है, गिट इग्नोर इज अ फाइल जो ट्रैक रखता है कि कौन सा फाइल मुझे नहीं डालना है गिटहब पे। वो फाइल्स जो गिट को इग्नोर करनी है, जो उसे गिटहब पे उसे पुश नहीं करना, तो उसे उसको उस पर कोई ट्रैक नहीं रखना, तो इसमें वो लिस्ट होती है फाइल्स की, तो उसको ट्रैक नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डॉट env, अब वो क्या करेगा, डॉट env को वो ट्रैक नहीं करेगा। अब अगर मैं टर्मिनल पे जाऊं एंड मैंने इसको छोटा किया, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि गेट स्टेटस, ठीक है, गेट स्टेटस। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है, चलो एक काम करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के फर्स्ट के अंदर एक फाइल बनाते हैं कि सेकंड फाइल डॉट txt, hi there, this is the second फाइल, ठीक है। हमने ये यूज कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं गेट इनिट तो था ही, गेट इनिट तो था ही, वी इनिशियलाइज हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, गेट ऐड करूंगी सारे फाइल्स को। फिर मैं क्या करूंगी, गेट कमिट करूंगी, ऐड सेकेंड फाइल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे गेट कमिट कर दिया, फिर गेट पुश कर दूंगा। मैंने क्या किया है, पुश हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने ये पूरे को पुश कर दिया गिटहब पे। नो आइडिया ये लोड क्यों हो रहा है, यस, ओके। उसके बाद अब मैं अगर गिटहब चेक करूँ तो आई शुड नॉट फाइंड दिस .env फाइल ओवर देयर एंड ऑल्सो द गेट इग्नोर फाइल, बस ये इग्नोर करने बोला है मैंने, और ये मुझे बस एक सेकेंड .txt देखना चाहिए वहाँ पे। सो ये हमारा गिटहब का वही गिटहब सेशन वाला हमारा फोल्डर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है, इसमें mania.txt और second.txt है, बट इसमें git ignore फाइल है। ओके, git ignore भी हमारा पुश होता है, ओके, बट इसमें हमारा कोई env फाइल पुश नहीं हुआ है, बिकॉज git ignore किसे इग्नोर कर रहा है, वो env फाइल को इग्नोर कर रहा है। सो हम git ignore इसलिए यूज करते हैं ये फाइल को, क्योंकि हम उसमें लिस्ट देते हैं, बहुत सारे लिस्ट देते हैं, ठीक है, कि हम कौन से फाइल को हम पुश नहीं करना चाहते, जो हमें पब्लिक नहीं करनी होती है, हमें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ही रखनी होती है, हम तब इसे यूज करते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द पीपीटी फॉर वंस, जिससे हमने जो लास्ट में कुछ चीजें सीखी वो हम एक बार रिकैप कर ले।
तो फोर्क क्या होता है? एक कॉपी होता है, पर्सनल कॉपी ऑफ समवन एल्सेस रिपोजिटरी इन योर गिटहब अकाउंट, ठीक है। ये अब बहुत वाइडली यूज होता है ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स में आप जब भी क्या करते हो, जो आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है जैसे आपको काम करना, तो पहले आप क्या करते हो, आप अपना एक कॉपी बनाते हो, राइट। उसमें आप चेंजेस करते हो, पुश वगैरह करते हो, उसको फिर आप देते हो वहां पे। अब उसमें भी आपको ब्रांचेस बनाने, तो ब्रांचेस बना के फिर वहां से भेज सकते हो। दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, यू कैन क्लोन योर कॉपी ऑफ द कोड इन योर डिवाइस बाय यूजिंग दिस कमांड गेट क्लोन, ठीक है। वो तो सिखा दिया। आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन द कोड एडिटर, ऐड, कमिट एंड पुश टू योर फीचर ब्रांच। आप यहाँ पे ब्रांच भी बनाओगे। आप पहले अपना एक कॉपी तो बनाओगे, आप उसमें अपना एक ब्रांच भी बनाओगे, फीचर ब्रांच। आप वहां से उसके वाले मेन ब्रांच पे भेजोगे रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप एक पीआर बनाओगे। पीआर मतलब क्या? अपने फोर्क वाले से उसके मेन वाले तक, उसके मतलब ओरिजिनल वाले पे रिक्वेस्ट देना कि मैं ये चेंजेस करना चाहता हूँ। वो आप फीचर ब्रांच में, फीचर ब्रांच ऑफ को टू द मेन ब्रांच ऑफ द ओरिजिनल, मतलब अपने फीचर ब्रांच, अपने आपने जो नया ब्रांच बनाया है, आप उस ब्रांच से, फोर्क वाले रिपोजिटरी से उसके ओरिजिनल रिपोजिटरी के मेन ब्रांच पे रिक्वेस्ट भेजोगे। ये आपका पीआर का डेफिनेशन भी हो जाता है यहाँ पे। पीआर व्हेन यू रिक्वेस्ट मर्ज चेंजेस फ्रॉम योर फोर्क रिपोजिटरी, आप अपने फोर्क से किसी ओरिजिनल में रिक्वेस्ट आ गए, ठीक है, तो आपका वो पीआर हो गया। फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे होता है। ये फीचर किसमें अवेलेबल है? इट्स अवेलेबल ऑन गिटहब। नेक्स्ट इज पुल। अब वही मैंने बोला कि पुश करने से पहले आपको एक अपडेटेड कोड चाहिए। अगर किसी ने और भी वहां पे कुछ काम किया है, तो आप पहले उसे पुल करो, ठीक है। आप उसे अपने डिवाइस पे लाओ, लोकल डिवाइस में। आप अपने कोड बेस को अपडेट करो, ठीक है, और फिर उसे आप पुश करो। पुल क्या करेगा कि जो भी नए चेंजेस है वो अपने कोड में ले आएगा। आपकी कोड आपके चेंजेस को डिलीट नहीं करेगा, बट आपके वहाँ पे जो भी नए चेंजेस है वो आपके कोड में ले आएगा। Updates your local branch with the latest changes from the remote repository. It fetches new changes from the remote repository plus merges these changes into the local branch. Okay. कमांड क्या है? git pull, ठीक है। अब ये क्या, रिमोट ब्रांच, ठीक है, ये सब दे। अब ये ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन और मेन के बारे में मैं ये बोलूंगी कि वीएस कोड पे हम जो हमारा रहता है वो मेन कहलाता है। ओरिजिन हमारा is the main of the remote repository, and main is the main of the main is the main of the local repository, but origin वहाँ पे जो main होता है that is the remote repository, दोनों का main अलग होता है। ओके। वो क्या होता है? वो उसको हम जनरली ओरिजिन के नाम से बोलते हैं, जो रिमोट रिपोजिटरी का मेन होता है ब्रांच, और जो हमारे वीएस कोड पे होता है उसे मेन बोलते हैं। अब गेट पुल यूज होता है पुशिंग, बिफोर पुशिंग। क्योंकि अगर आपने पुश नहीं किया, अब अगर आपने पुल नहीं किया, तो उसका चेंजेस वहां पे नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या कर सकता है? कॉन्फ्लिक्ट्स कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अगर फेच कर सकते हैं आप, अगर आपको रिव्यू करना है चेंजेस। अब गेट इग्नोर क्या फाइल क्या होता है? फाइल दैट टेल्स गेट which files and folders should not be tracked in a repository. This is useful for ignoring temporary files, build files, API keys, and dependencies that shouldn't be committed to the repository. Okay, we have completed the basic terminologies, and this should sum up all the basic stuff one should know about Git and GitHub. It's very essential. And congratulations, you have completed the basic terminologies of Git and GitHub. You are ready to uh, contribute in open source now. You know what Git and GitHub. You are ready to learn any new web dev or anything AML. So as in everything, you have to use Git and GitHub to show your skills of, to show your code or contribute somewhere. Okay. Next topic will be resolving conflict. So now coming to resolving conflicts. So what are conflicts? So conflicts occur when there are changes in different files from different branches, and when you try to merge them together, they cause some issues. So Git in itself is very intelligent. So let's say if you work on one file, your friend or your colleague is working on another file. So they are working on separate branches. So let's say you both have done your work. So now it needs to be merged into the main branch. So you send your pull request, the other person sends his pull request, and as you both were working on two different files, so Git will see that okay, I have to add this file, and done. It's now merged into the main.
But sometimes what happens is that, let's say your friend is also working on the same file, you are also working on the same file. So let's say your friend writes that file number one. Say in that file he writes some code in line one. Your friend also writes the code in the same line. What it does is that now Git sees that, okay, for your file there's some different code, for his file there's some different code. So it gets confused. So it says which file code do I actually have to put in the main branch. That's why the conflicts occur. So in order to resolve it, what you have to do is you have to identify it. So when you run a merge, it will already tell you where the conflict is happening in which file. So as you can see here, that head changes, your changes, and the changes from the branch being merged. So let's say it's another branch you have, and the changes that you have committed, there is some issues in that particular line. It will show you that. So in order to resolve this conflict, what you have to do is you have to decide which change you have to put in. So let's suppose the branch has already some changes in the line one, but your code is more important than his code or that branch code that already has that code. So what you do is you just tell it that, okay, you have to keep mine and delete whatever their code is. So you just have to remove the conflict markers and remove the other person's code and just keep your code, and it will just say that, okay, I have to keep this code. It will know about it, and then you can mark that conflict as resolved after editing the file. And once it's done, you can just do all the basic commands like git add dot and git commit and all. So this way you can resolve the conflicts. So this is our git and github session. From all this slides and all this learning, the main thing you have to focus on is this, the basics. That is add, commit, push. These are the most important thing that you need to know, because this is most of the time you are going to use this as a basics. And once you start working in team, you will get to know about merging branches and all these things. But for now, to start your journey as a developer in community, these three commands are the most important one: git add, git commit, and git push. You also need to create a repository, of course. That's also a part. How to create and how to use that repo to push your code. These are just most important things. So keep that in mind. You can practice with them on your own system, and it's all easy. You can do it very well. So this is from us, Hackslash. Thank you.